ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور کچن کا ہمارا سیگمنٹ ہے. ریسیپی بھی ہم ہما سے جانیں گے, لیکن چونکہ میں کچن میں آ چکی ہوں تو ہاتھوں سے جراثیم کا خاتمہ بہت ضروری ہے, اور ہاتھوں سے جراثیم کے خاتمے کے لیے ڈیٹول جناب موجود ہے. اپنے بیگ میں سینیٹائزر رکھیں یا ہینڈ سوپ رکھیں اور اپنے ہاتھ سے ہر طرح کے جراثیم کا صرف 20 سیکنڈ میں خاتمہ آپ کریں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے تمام لوگ محفوظ رہیں. 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. گھر سے اسپیشلی اگر باہر جائیں تو لازمی آپ اپنے ہاتھ واش کریں. ڈیٹول سے اچھی اور کوئی آپشن اس میں ہو نہیں سکتی ہے. میں تو آرام سے ایک سینیٹائزر اپنے بیگ میں رکھتی ہوں اور اپنے ہاتھوں کو تمام جراثیم سے محفوظ رکھتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کی جانب آنے والی ہوں اور کوئی سیگمنٹ ہمارا ہونے والا ہے, ذرا آڈینس کو پہلے بتا دیتے ہیں, تب تک میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ نبیہہ میری کو ہوسٹ اب ان بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنے والی ہیں, اور وہ بھی ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے. ہمارا کچھ سیگمنٹ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں, اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 3 کنٹیسٹنٹ ہیں جو مختلف مادر علمی سے آئے ہوتے ہیں. ان سے ہم انڈیویجولی 1-on-1 راؤنڈ کرتے ہیں. آدھے سوال نبیہہ پوچھتی ہیں, آدھے میں پوچھتا ہوں. ان کے نمبرنگ ہوتی ہے. اس کے بعد بزر راؤنڈ ہوتا ہے. ایک سوال آپ کی طرف کہا جاتا ہے, جو بزر پہلے بجائے گا وہ جواب دے گا. صحیح ہوگا تو نمبر ملیں گے, صحیح نہیں ہوگا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. اس کے بعد ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں بیچ میں سے ایک کنٹیسٹنٹ کو. آخری ہمارا ایک فائنل ہوتا ہے ٹائم آؤٹ, یعنی کہ ایک خاص وقفے میں آپ سے سوال کیے جاتے ہیں, جتنی جلدی جواب دیں گے اتنے نمبر ہوں گے. میں سب سے پہلے نبیہہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کے کنٹیسٹنٹس کیا آپ کو تعارف کروا دوں. ہمارے پاس سب سے پہلے عمر حسین صاحب یہاں کھڑے ہیں, جن کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے. ان کے ساتھ ہماری بچی کھڑی ہے جس کا نام ہے عارفہ, اور وہ ورچوئل یونیورسٹی سے آئی ہیں. آخر میں روشان الہی بٹ صاحب, ان کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے. جی سب سے پہلے عمر آپ سے میں سوال کروں گی, اور آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ موئنجو دڑو کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن کی کس سورت کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. پاکستان کا پہلا ایٹمی پاور اسٹیشن کب نصب کیا گیا؟ کراچی. ٹھیک ہے. پاکستان میں کب کیا گیا؟ 1974 میں. چلیے ٹھیک ہے. پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1951. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. اب آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں صاحب, اس ملک کی ایک بہت قداور شخصیت, ان کا نام عدنان شاہ ہے, مگر ہم انہیں ٹیپو بھی کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے ٹیپو کا لغوی معنی کیا ہے؟ شیر. دوسری بات مجھے بتائیے, تاریخ میں کس شخص کا نام ٹیپو سلطان تھا, اس کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ میسور سے. یاد رکھیے گا بات, بہت بڑا برصغیر کا ہیرو ہے. نمبر 3, آپ کا تعلق سینٹرل پنجاب سے ہے. یہ بتائیے کہ ساؤتھ پنجاب کے کسی اہم شہر کا نام بتا دیجیے. ساؤتھ پنجاب کے. ملتان. چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات, حالانکہ وہ بھی کافی سینٹرل ہے. اور اب آخری سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں. حضور والا یہ بتائیں کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں, جس کا نام لاہور ہے, اس میں کون سی مغل ملکہ مدفون ہے, یعنی ان کا مزار یہاں پہ؟ انارکلی. سر اللہ کرے کہ کوئی ملکہ بنتی, مگر اپنی حسرتیں لے کے دیوار میں چلی گئی. البتہ جو ملکہ یہاں مدفون ہے ان کا نام نور جہاں ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, عارفہ کی جانب بڑھتے ہیں. اور یہ تو قدم یہیں رک گئے ہیں, میں کیا کروں, آگے چلو. عارفہ آپ کے لیے پہلا سوال بہت ہی آسان ہے کہ مینار پاکستان جس جگہ موجود ہے اس کا پرانا نام کیا ہے؟ منٹو پارک. اچھا جی. شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کے کون سے کلام میں ہے؟ کلیات اقبال. کلیات اقبال کل کلام ہوتا ہے, مگر اس میں سے اسپیسیفکلی کس مجموعے میں سے شکوہ اور جواب شکوہ ہے؟ شاید بانگے درا. کریکٹ. انٹرنیٹ کا سب سے بڑا سرچ انجن کون سا ہے؟ گوگل. کریکٹ. اچھا بتائیے گا کہ کس شخصیت نے سب سے پہلے قائد اعظم کو بابائے قوم کا خطاب دیا؟ حسن نظامی. غلط جواب ہوا قاضی محمد اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیے گا سوال. جی میں آپ سے بات پوچھنے لگا ہوں. ابھی ہمیں بات کی بانگے درا کی. یہ بتائیے علامہ کا ایک مجموعہ, اس کا نام ہے بال جبریل. بال جبریل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی اور آپ نے سنی ہی بات کہ نہیں سنی, آپ سے سوال کیا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو سوال انہوں نے چھوڑا ہے, موہنجو ڈارو کا مطلب کیا ہے؟ کھنڈرات. نہیں, ماؤنڈ آف دا ڈیتھ. ٹھیک ہے, موت کا ٹیلا. آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ لاہور سے. لاہور میں رہتی ہیں. یہ بتائیے لاہور میں بننے والا پہلا میڈیکل کالج کون سا تھا؟ یونیورسٹی آف پنجاب. میڈیکل کالج نہیں ہے بیٹا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, اور میرے دل پہ ہاتھ پڑا ہے کیونکہ میں وہاں کا فارغ التحصیل ہوں. اب آپ سے ایک اور سوال. آخری سوال ہوگا. پاکستان لاہور میں سب سے پہلے ایک ایسا میڈیکل کالج قائم کیا گیا جو صرف خواتین کے لیے تھا, اس کا نام کیا تھا؟
बेटा उसका नाम था फातिमा फातिमा जिन्ना जिन्ना। मेडिकल कॉलेज। अगला अच्छा जी रुशान, आपके लिए पहला सवाल ये है कि चौथे आसमान पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने इस्तकबाल किया? हज़रत इज़राइल। सबसे पहले दवा साजी की दुकानें किसने कायम की? रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले दवा साजी की दुकानें किसने कायम की, किस मुल्क ने, कहाँ पे? पास। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी के बानी कौन है? बिल गेट्स। अच्छा जी। इंटरनेशनल हॉकी में किन खिलाड़ियों को दीवार चीन कहा जाता है? मंजूरुल हसन, मुनव्वरुल ज़मान। डॉक्टर साहब। बेटा जी अभी आपके सामने एक सवाल किया गया था कि जहां पे अब यादगार पाकिस्तान या मीनार पाकिस्तान है उसको अब तो कुछ और नाम कहा जाता है, उस पार्क का नाम ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। असल में इसका नाम था मिंटो पार्क। ये मिंटो साहब कौन थे? किसके नाम पे इस पार्क का नाम मिंटो पार्क था? सादत हसन मंटो। ओए होए होए, मेरी जान कुर्बान जाऊं तुम पे कि ये मिंटो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये एक अंग्रेज थे जिनका ताल्लुक जो था ब्रेडफोर्ड से था। सादत हसन मंटू का वाकई बड़ा मकाम है। मंटू मैंने खास तौर पे कहा, यकीन कीजिए जब पूछा जाता था सादत हसन साहब से कि ये आपकी जो जात है इसको कैसे कहें, पता क्या कहते थे मंटू बवजने 1-2। याद रखिए बात। अगला सवाल जी बजर राउंड की तरफ अभी हमारे सवाल मुकम्मल हो गए। एक सवाल रह गया। बिल्कुल। ठीक है। आपका ताल्लुक किस इलाके से? सियालकोट। सियालकोट से। एक्सीलेंट। ये बताइए सियालकोट से उभरने वाला एक ऐसा शायर जो कि हजरत अल्लामा इकबाल नहीं है, वो कौन थे? फैज अहमद फैज। एक्सीलेंट। करेक्ट हो गया। अच्छा जी अब दूसरा राउंड पहले डॉक्टर साहब ने एलेबरेट कर चुके हैं, आपकी मार्किंग हो चुकी है। सेकंड राउंड है हमारा बजर राउंड, ठीक है, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है और इन जवाबात के बलबूते पर आप में से कोई एक आउट भी हो सकता है। तो पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? किसी को नहीं मालूम? ठीक है जी। सूरह मायदा में मायदा से क्या मुराद है? मायदा लफ्ज का मतलब क्या है? दुनिया का पहला साज किसको कहा जाता है? खवातीन का इल्मी साल पहली मर्तबा कब मनाया गया? 1966। ठीक है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली हैट्रिक का आजाद किस मुल्क के पास है? वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान। गलत जवाब। डॉक्टर साहब। बिल्कुल। आपसे मैं जल्दी करें सवालों का, जल्दी जवाब देना। ठीक है जी बिल्कुल। सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? आप अक़लियत को। करेक्ट। अक़लियत को। बिल्कुल ठीक है। अगली बात आपको जल्दी से पूछे आपसे सवाल, ये बताइए कि बाबा कौम हजरत कायद आजम का मजार किस शहर में वाक़ है? सबसे रूसनास। कराची। वेरी गुड। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मादरे कौम मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मजार मुबारक किस शहर में वाक़ है? बेटा हमारी माँ है। आगे चले, पास करते हैं। अगला सवाल, अब आखिरी सवाल ये है, इसमें नंबर लेने तो ले लो, वाकई मैं सही बता रहा हूं आपको। ठीक है जी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के अलावा बाबा कौम की किसी एक बहन का नाम बता दें। 2 बहनें और हैं, उनमें से किसी एक का नाम बता दें। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? रुशान। हॉकी। करेक्ट। बेटा जी मैं ख़वातीन हज़रात आप सबके सामने एक बात अर्ज करूं आपको, अपने बच्चों को अपने मुल्क, अपने मजहब और इस किस्म के लोगों से जरा वाकफियत पैदा करवाइए। ये जो पांसे का खेल आप खेलते हैं ना कि नंबर 5 खोल दो और उसमें से मोटरसाइकिल निकल आए, इसने आपको जवारी तो बना देना है, इल्म कभी नहीं देना। और मैं बड़ी सख्ती से ये बात कह रहा हूं, इसके बारे में अरबाब इख्तियार भी सोचें, और अगर किसी को आग लग रही है ना तो भस्म हो जाए जल के। सर ये नॉलेज का लेवल। इसी के साथ ब्रेक में जाते हैं और डॉक्टर साहब अब रोजा वरना मैं आपको पानी भी पिलाती, क्योंकि देखिए मेरा दिल ठंडा होगा जब मेरे कौम के नौजवान अपनी कौम के बारे में, अपने मौसम के बारे में तनकीद पे जाए। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है, लेकिन ब्रेक पे जाना पड़ा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोई एक इनमें से आउट हो चुका होगा। राउंड 3 की जाने पड़ेंगे, हुमा से रेसिपी भी लेंगे। स्टे विद अस। मुझे नहीं होता। वेलकम बैक जनाब। डॉक्टर साहब हम आ चुके हैं लाइव वापस, और दुख की घड़ी है कि किसी एक को अभी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। कि हमारी जो बच्ची है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप बेटा चलिए के वहां बैठे और सुने के बाकी लड़के क्या करते हैं, आपको मैं रोशान आप थोड़ा सा जरा करीब आ जाइएगा, हमारे कैमरे के लिए आसानी हो अच्छा जाएगी। और इसके साथ ही नबी आपसे सवालों का ये टाइम आउट है, आपसे अलग दिया जाएगा। जितने टाइम में जितने सवालों का जवाब दे उतने नंबर बन जाएंगे। ठीक है जी। पहला सवाल, आप लोग तैयार है पहले सवाल के लिए? पहला सवाल यह है कि 1000 मीनारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? कायरा। ठीक है। बताएगा कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? शाह यूनिवर्सिटी। सबसे पहले कार्टून फिल्म किस मुल्क में और किस कंपनी ने बनाई? अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी। ठीक है। आजाद कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन कब बना? आजाद कश्मीर। जी पास। ठीक है। डॉक्टर साहब।
बेटा मुझे को बता दो तुम्हें जो जिन चीज़ों में दिलचस्पी है ताकि उसमें से सवाल पूछूं। दिलचस्पी किस चीज़ में है? टेनिस। किसमें? टेनिस। टेनिस से एक्सीलेंट बेटा वाकई। ये बताइए, दो बहनें ऐसी हैं जो कोई जुड़वा तो नहीं लेकिन ऊपर नीचे की हैं मगर टेनिस के काम की माहिर हैं दोनों, उनमें से किसी एक का नाम बता दें। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स, बड़ी अच्छी बात है लेकिन इसमें टीपू की मदद शामिल है। ये बताइए सेरेना बड़ी है या वीनस बड़ी है? वीनस। ये बताइए ज्यादा कामयाबी किसने हासिल की टाइम है? आउट हो चुका। सेरेना ने ज्यादा कामयाबी हासिल की Okay, है। well ये बताएं कि टाइम अप हो गया जी, बिल्कुल टाइम अप हो गया और आपके सवालों का पता चल गया। अगला रोशान के लिए बताइएगा कि पानी की मलिका किस पौधे को कहा जाता है? वाटर लिली। ये बताएगा बलूचिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम क्या है? वजीर आला। वजीर आला का हो, यस, वजीर आला का नाम क्या है? पास। ठीक है। बताएगा कि दरियाओं का मालिक किस मुल्क को कहा जाता है? मिस्र। गलत। बांग्लादेश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का क्या नाम है? फीस कारदार। जी डॉक्टर साहब। ये बताइए बेटा कि शाही का पहाड़ हमारे मुल्क के किस सूबे में है? बलूचिस्तान। वेरी गुड। ये बताइए वो कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसका मोटो है करेज टू नो? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। भाई वाह। ये बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बानी प्रिंसिपल का नाम क्या है जिसने इस मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान किया? JW लाइटनर। लाइटनर, ठीक है जी, लाइटनर। ये सवाल बजर हमारा हो चुका और रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक डॉक्टर साहब मैं जरा किचन में जा रही हूँ। मेरे ख्याल में चली जाए। मैं तो हैरान हूं मैं कि चाहूंगी खुशबू कि से- आप भी आए बल्कि किचन में करीब बिल्कुल, आइए जरा। अभी दोनों में टाई हो गए, एक एक सवाल आप पूछा सवाल जाएगा। करें, मैं यहीं सवाल से जवाब करता हूं। अब देती जल्दी हूँ, से मुकाबला जिसने देखती हूँ पहले बजर दबा दिया उसका हम जवाब मान लेंगे। ठीक समझ आ गई मेरी बात की? याद रहेंगे आप लोगों को बिल्कुल बात। ये कैसा एक बहुत ही सिंपल सवाल आपसे मैं करने लगा हूं। ये बताइए पाकिस्तान के हालिया वफाकी वजीर खजाना का नाम क्या है? आपने मैंने दबाया। शौकत तरीन। वेरी गुड। इनका सवाल फैसला हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल में किचन तक जा सकते हैं कि नहीं जा बिल्कुल सकते? जा सकते हैं, लेकिन इनाम मैं चाहूंगी कि लड़कों को जरा अगर दे दें। मेरे ख्याल में हमारे आज के विनर जो हैं रोशान इलाही भट्ट साहब हैं। रोशान, थोड़ा सा वैसे मैंने तुम्हारे साथ रियायत की है कि तुम्हारे ही मादरे इल्मी के बारे में सवाल किया। हालांकि मेरा ताल्लुक बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं है मगर हालिया मैं वहां पे एक लेक्चर देने गया था और इस कदर उम्दा वाइस चांसलर और बाकी फैकल्टी हैं कि मेरा दिल उन्होंने जीत लिया वाकई जी। अब हम चलें, बहुत मुबारक, मगर जरा थोड़ी सी और काम करना की जरूरत है। और आज बनी है वो कचौरी। कचौरी इट्स नॉट कचौरी। कचौरी नहीं है, कचौरी नहीं है। ये लाहौर नहीं है, लाहौर है, तो ये भी कचौरी है, कचौरी नहीं है ये। ओके जी। तो ये कचौरी को खाए हुए मुझे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं। इसकी रेसिपी दे दें ताकि घर जाके बना सकें। रेसिपी मैं बताऊंगी आपको। मैदा लेना है आपने, मैदे के साथ आपने घी के अंदर आप गूंद सकते हैं लेकिन मैंने इसे बटर में बनाया। अच्छा। बटर को आपने जो है लाइट सा पिघला लेना। वैसे टेम्परेचर ऐसा कि अगर आप उसे आधे घंटे के लिए बाहर पड़े रहने देंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। नमक डाला है उसके अंदर, उसके अलावा आपने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा उसको खस्ता करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जो है उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लें, सोडे की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। गूंद के मैंने इसको रख दिया था। 1.5-2 घंटे बाद आपने इसके जो है जिस तरह से आप स्क्वायर पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है इसकी लेयरिंग, इसके वर्क बना लेने। और मेरा तो काफ़ी बड़ा पेड़ा बन गया था और मैंने इसको बड़े से टेबल के ऊपर जो है बेल लिया था अच्छे से। एटलीस्ट जो है ना 8 टाइम आपने वो स्क्वायर पराठे वाले वर्क जो है ना वो रिपीट करने और उसके बाद उसके मैंने छोटे छोटे जो है स्क्वायर में ही काट के अलग से पेड़े निकाल लिए। जरा हुमा की बात पे गौर कीजिए, ये समोसे की पट्टी से नहीं बनता, ना समोसे की तरह इसका पेड़ा बेला जाता है, इसके अंदर बर्फी पराठे की तरह बल डाले जाते हैं। तो जब आप एक पेड़ा कर लें उसको पहले एक दफा तय कीजिए, तय करके फिर तय कीजिए। जिस तरह बचपन के अंदर आप कागज से एक कश्ती बनाया करते थे, तभी इसके अंदर परत पैदा होंगे और वर्क पैदा होंगे। कैसे उनका लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरे मौला टीपू। अच्छा जी, इसके साथ फिलिंग जो आपने करनी है, आप कीमे की करना चाह रहे हैं तो कीमा जो है आपने सादा प्याज के साथ जो है कीमे को अच्छे से भून लेना है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और धनिया हरी मिर्च ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपने चिकन की कचौरियां बनानी है तो चिकन की जो है बोनलेस लेके आपने उसे बॉईल कर लेना है, उसके रेशे बना लेने हैं और फिर उसमें नमक मिर्च और चॉप प्याज ऐड कीजिए और उसकी फिलिंग कीजिए। उसके साथ बादामी कौरमा बनाया जी। और कौरमा जो है बनाने के लिए आप चिकन का बना लें, मटन का बना लें, जिस भी चीज़ का बनाना चाह रहे हैं। प्याज आपने सबसे पहले फ्राई करके निकाल लेने हैं। उसी घी या ऑयल के अंदर जो है आपने, मैंने कश्मीर ऑयल था जी मेरे पास,
मैंने उसके अंदर बनाया। प्याज निकालने के बाद जुल्म हो गया। प्याज जो है निकाल के आपने उसको टिश्यू पेपर पे फैला लेना है, जब वो थोड़ा ऑयल उसका अब्जॉर्ब हो जाए और वो क्रिस्पी हो जाए तो आप उसकी पाउडर उसका बना लीजिए। उसी ऑयल के अंदर जो है मैंने चिकन जो है उसको फ्राई किया था, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, साबुत गरम मसाले के साथ आपने छोटी इलायची, हरी इलायची जो है वो भी ऐड करनी है जी, सूखा धनिया ऐड करना है, दही ऐड करना है, टमाटर मैंने नहीं डाले, और उसको अच्छे से भून लेना है। लास्ट पे सबसे जो आपने बादाम है उनको भिगो देना है, उसको छील के उसकी पेस्ट बना लें, नहीं तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। ज़रा पेस्ट बने हुए बादामों के ज़रा टेस्ट डिफरेंट आता है। और प्याज जो आपने पाउडर बनाया था वो ऐड कीजिए और उसको हल्का सा दम पे रख लीजिए। लास्ट पे जो है गार्निश कीजिए बादाम, छिले हुए बादामों के साथ। अगर आप फ्राई कर लें तो ज़्यादा ज़रा क्रिस्पी और मज़े के लगे। मैं एक बात अपनी प्यारी शेफ़ के लिए कहना चाहता हूँ, जिस सलीका मंदी से सर ये प्रेप करके आती हैं और यहाँ रिकॉर्ड टाइम के अंदर बादामी कोरमे जैसी मुश्किल और दकीक डिश बनाती हैं, ये इन्हीं का हिस्सा है। और फिर मैं इनकी बातों से अंदाज़ा लगाता हूँ कि वाकई अच्छी शेफ़ हैं या नहीं है। कमाल बात आज की है, कौरमे के अंदर टमाटर नहीं डलता, कौरमे के अंदर सुर्ख की हुई, फैलाई हुई, क्रिस्पी हुई प्याज का हाथों से चूरा किया हुआ आखिर में डलता है, तब वो कोरमा बनता है। खुदा के लिए आजकल हर चीज एक ही डिश बन रही है। इकट्ठा ही मसाला बना दे, उससे जो मर्जी बेशक। अब चूंकि मेरी भी इस वक्त ज़ब्त की एक पूरी कैफियत चल रही है, कौरमे की खुशबू ऐसी उठ रही मैं बयान नहीं कर सकता, और ऊपर ये डले हुए, भीगे हुए, खिले हुए बादाम। नहीं तेनू बाजा भी मार दी है, आ खा खा खा, देख लीजिए फिर दोबारा। खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवा में तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। है तू भी
صائم عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لے حساب تیرا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا سنتا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا سبحان اللہ. میں ایک نبیہ آپ سے آگے تھوڑا سا آپ کا حق ماروں گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا. سر یہ وقت آ گیا ہے, آج یہ محفل ہے. حضور میں اس طرف دیکھوں یا اس طرف دیکھوں میرا دل لرز رہا ہے, ادھر دیکھوں تو جو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ مولا کائنات کی ذوالفقار کو لگا رکھا ہے تو بار بار دل ادھر کھچ رہا ہے. آج نبیہ نے بڑے ادب سے آپ کو کہا مولانا نظر آپ پہ ٹکی ہے, وہ آپ پہ نہیں, وہ اس تلوار پہ اس نام پہ ٹکی ہے. اور جب ادھر دیکھوں اپنے مہمان کی طرف, میرے علامہ ہیں, نام ہے کرامت عباس, عباس کی کرامت, اور نسبت کیا ہے؟ حیدری حیدری حیدری. حضور والا ایک دعا ہے اپنے لیے اور علامہ کو شامل کروں گا اور آپ سب کے لیے. روز محشر اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار محبان اہل بیت اور محبان علی میں ہو. اور پھر دیکھیے گا حشر اوروں کے لیے ہوگا, ہمارے لیے پکنک ہوگی. یہ میری بات یاد رکھیے. علامہ بے انتہا مہربانی آپ تشریف لائے, دل بستگی کا باعث ہے. سوال اب آپ کر لیجئے, میں نے صرف آپ کو خوش آمدید کہا. جناب رحمت کا عشرہ, پہلا عشرہ 5واں روزہ, اور اس کی رحمت کی ہی بات کریں گے جس نے اپنے نبی اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا, اور وہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے رحمت کے دروازے میں کھول دوں. سمندر کی اگر بات کریں تو سمندر کا پانی سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہے. کوئی اس سے موتی نکال لیتا ہے, کوئی اس سے مچھلی نکال لیتا ہے, تو کسی کے لیے وہ صرف کھارا پانی ہے. اور اسی طرح جو برستا بادل ہے, صحرا اس سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے, اور جو زرخیز زمین ہے وہ اس سے سبزہ اگا دیتی ہے, لیکن جو پتھر ہے اس کو یہ پانی چھو کر گزر جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت بھی اسی طرح سے ہے کہ جو جس سے جتنا مانگے گا اس کو یہ اتنا نوازے گا, اور بے شک اللہ کا جو رنگ ہے وہ سب سے بہترین ہے. تو تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائے گا, اس عشرے کے حوالے سے بتائیے گا. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سب سے پہلے میں نیوز چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مبارک ساعت میں مجھے ناچیز کو گفتگو کرنے کا موقع دیا. ڈاکٹر عادل عمر صاحب کی عارفانہ, عالمانہ اور محبت بھری گفتگو کے بعد لفظوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی. میں گزارش کروں, بارش کو بھی اللہ نے رحمت کہا ہے. بالکل. چونکہ رمضان المبارک ہے, یہ رحمت کا مہینہ ہے, اور رحمت میں کبھی نفرت انگیز گفتگو نہیں ہوا کرتی. جہاں رحمت ہو وہاں محبت اور پیار کا تصور ہوتا ہے, وہاں نفرتیں نہیں بکھیرا کرتے. اللہ میرے اس پاک وطن کو سلامت رکھے, اس کے امن کو سلامت رکھے, یہ بھی ہم دعا شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, بارش رحمت ہے. اب بارش کا کام ہے برسنا, جیسے کہ میری محترمہ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا خوبصورت انداز سے سوال کو پیش کیا ہے. تو میں گزارش کروں گا, اگر بائبل والے ہاتھ میں بائبل اٹھا کے کہیں کہ اے بارش تو نے آج صرف چرچ پہ برسنا ہے, مندر پہ نہیں, یا مندر والے گیتا ہاتھ میں اٹھا کے کہیں کہ اے بارش تو نے صرف مندر پہ برسنا ہے, چرچ پہ نہیں, یا مسلمان اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کے کہے اے بارش تو نے صرف مسجد پہ برسنا ہے, باقی کسی عبادت خانے پہ نہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. جو اللہ کی چیز ہوتی ہے, اللہ چونکہ عالمین کا رب ہے, وہ کل کائنات کا مالک ہے, کیونکہ شروع ہم اپنے پاک اللہ سے کرتے ہیں نا. ترتیب اسلام بھی یہی ہے اور ترتیب انسانیت بھی یہی ہے کہ جسے میرا نبی سجدہ کرتا ہے, جسے کل انبیاء سجدہ کرتے ہیں, جسے زمین و زمن سجدہ کرتا ہے, وہ اللہ کتنا عظیم, کتنا رحمان, کتنا رحیم ہے. اس میرے پاک اللہ کی یہ کائنات ساری تخلیق کی ہوئی ہے. تو بارش رحمت ہے. اب رحمت کا کام ہے سب پہ برسنا. آگے ظرف کی بات ہے, پھول پہ گرے گا تو خوشبو قطرے سے آئے گی, بدبو پہ گرے گا تو قصور بارش رحمت کا نہیں ظرف کا ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک ظرف ہے. میرے نبی عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नामदार सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्वे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, कौनैन कहबा, ज़हरा के बाबा, पैकर हुस्न जमाल, मजमुआ गैरत व कमाल, वालिय सब्र इस्तगलाल, अरब के सुल्तान, वही के तर्जमान, रहबर शरीयत, पैगाम हुर्रियत, दानाए सुबल, मौलाए कुल, इश्क अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क अव्वल, शर्फ अव्वल, ज़र्फ अव्वल, जिनका चेहरा वद्दुहा है, जिनकी आंखें मरजल बहरैन है, जिनका कद एहदिन सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर है, जिसकी नस्ल सूरह कौसर है, जिसका हुस्न सूरह यासीन है, जिसकी जुल्फ़े वल्लैल है, जिसका देखना अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं देखना होता, उस नबी को अल्लाह ने, देखिए हर नबी की अल्लाह ने एक हद बताई। जब जनाब आदम की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने अपने आदम को खिलाफत दी है सिर्फ जमीनों के लिए, हमने इसे खलीफा बनाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने इनको खलीफा बनाकर भेजा जमीनों के लिए। इब्राहीम को इमामत दी इंसानों के लिए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा बनी इसराइल के लिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा बनी इसराइल के लिए। ये सारे नबी पाकीज़ा हैं, सारे मुकद्दम हैं, लेकिन यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, जब मेरे आका की बारी आई, जब मेरे रसूल की बारी आई, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जो हद मेरे लिए है, मैं रब्बुल आलमीन हूं, जहां जहां तक मैं रब्बुल आलमीन हूं, वहां वहां तक मेरा नबी रहमत लिल आलमीन। अब ये तो बात हो गई कुरान की रूह से कि मेरा नबी रहमत लिल आलमीन है, ना कि वो सिर्फ मुस्लिमीन के लिए है। कुरान जो है वो शिफाए मुस्लिमीन है, मुस्लिमीन के लिए शिफा है, और मेरा नबी जो है वो रहमत लिल आलमीन है। कुरान हिदायत है, नबी हादी है। कुरान विरासत है, नबी वारिस है। कुरान मौजा है, नबी मौजूज नुमा है। कुरान मुश्किल है, नबी वो बताने वाला मुश्किल कुशा है। और कुरान लारैब है, मेरा नबी बेऐब है। अब आपने मुझे एक सवाल किया था डॉक्टर साहब, तो मैं सवाल की तरफ आता हूं और आप मुझे इशारा फरमाएंगे ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को रोकूं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, जहां तक मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात है, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को, चूंकि हमारे नाथ खान नूर आलम साहब भी बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, उनके लिए भी हदिया कर रहा हूँ, कुल आलमीन के लिए, कुल मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए, अपनी पाकीज़ा दुख्तरान इस्लाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ ये नशरियात जा रही, जो हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे या नहीं भी देख रहे, उनके लिए भी मेरी ये दुआ है, अल्लाह सबको अपनी रहमत आलम में रखे। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं मेराज पर, तो खालिक की आवाज़ आती है कि मूसा अपने जूते उतार दो। अल्लाह अकबर, ये जुमला में हदिया करना है, ऐ मूसा अपनी नालैन उतार दो। अब अल्लाह का हुक्म हो और कोई नबी ना माने, ये मुमकिन ही नहीं, ये सोचना ही हराम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नालैन उतारे वादी तूर सीना पर और अर्ज़ किया कि मेरे बारे लाहा, मुझे सवाल का हक नहीं, तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूँ। वो मैं कलीमुल्लाह हूँ, मगर मैं अपनी बंदगी और तेरी हाकमियत को फ़र्क समझता हूँ। ऐ मेरे पाक अल्लाह, मुझे ये फरमाया। हम इस कदर महव हैं गुफ्तगू में, मगर याद कराया जा रहा है कि ब्रेक करीब आने वाली है। जी ठीक है सर, बहुत ही गलत वक्त है। अरे नहीं, मैंने तो पहले आपसे ये अर्ज किया, सुनने वाले आपको दोबारा